Hello everyone, welcome to Chokta Academy. My name is Bhanu Guleria and we are doing the most important current affair revision through MCQ. This is the part 16 of the video. So let's start the video. The first question is, consider the following statement. The Surrogacy Act 2021 allows the surrogacy to married couple, live-in partners, single women and also foreigners. Second, the laws in India does not allow for altruistic surrogacy. Third, assisted reproductive technology include gamete donation, intrauterine insemination and in vitro fertilization. Which of the above statement is correct? Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 3, option D 1 and 3. अगर surrogacy act 2021 की बात करें, it allows surrogacy only to married couples in India, then first statement is incorrect. Okay, it does not allow surrogacy for live-in partner, single women and foreigners. Okay, then the first statement is incorrect. The laws in India does allow altruistic surrogacy. Married couple के लिए जो altruistic surrogacy है वो allow है. Then the second statement is also incorrect. Third statement is correct. Okay, assisted reproductive technology include gamete donation, intrauterine insemination and in vitro fertilization. Okay, then C is the right answer. Okay, it further allows surrogacy to be available only to the infertile in Indian married couples. Indian married couples के लिए सिर्फ और सिर्फ surrogacy को एक्ट है वो अलाउ करता है. सेकंड क्वेश्चन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट FCRA registered association in India can receive foreign contribution for which of the following purpose? Option A, educational, economical, social, religious and cultural. Select the correct answer. All are right. Educational, economic, social and religious cultural purpose के लिए foreign contribution accept कर सकते हैं FCRA एक्ट के तहत. ओके, देन डी इज द राइट आंसर. थर्ड क्वेश्चन, मार्पोल कन्वेंशन sometimes seen in news is related to option A sustainable development, option B prevention of pollution from ships, option C prevention of transnational organized crime, option D elimination of all forms of discrimination against women. अगर हम मार्पोल कन्वेंशन की बात करें, देन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स. ओके, बी इज द राइट आंसर. द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स is the main international convention covering prevention of pollution of marine environment by ships from operational and accidental causes. Okay, मार्पोल की फुल फॉर्म भी हमने देख ली है. फोर्थ क्वेश्चन है, which of the following sets of state were at the bottom of the composite sustainable development goal India index 2020 and 2021 as per नीति आयोग. नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल इंडिया इंडेक्स 2020 और 2021 लाया गया. इसमें बॉटम में हमने बताना है कि कौन कौन सी स्टेट्स आई हैं. ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, झारखंड, असम और डी बिहार, उड़ीसा, सिक्किम. अगर हम बात करें बिहार, झारखंड एंड असम वर एट द बॉटम ऑफ कंपोजिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 2020 एंड 2021. ओके, Sustainable Development Index developed in collaboration with United Nations in India and tracks the progress of all states and duty on 115 indicators that are aligned to Ministry of Statistics and Policy Implementation National Indicator Framework. Okay, 115 indicators है और इसमें यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके ये नीति आयोग ने इंडेक्स लाया गया है. फिफ्थ क्वेश्चन, consider the following statement regarding hypersonic missiles. A hypersonic missile is a weapon system which flies at least 5 times the speed of the time. Unlike a ballistic missile, it follows a set course. Third,
At present, only Russia and United Nations possess hypersonic missiles. अगर हम बात करें hypersonic missile की, it flies at least 5 times the speed of sound. That statement is correct. Second, unlike a ballistic missile, it follows a set course. That is incorrect. Okay, it doesn't follow a set course. At present, only Russia. That is also correct. Incorrect. Okay, then the correct answer is B. Only one is the right answer. Hypersonic missile do not follow a ballistic trajectory and can be maneuvered to intended target. Okay, इसलिए हमारी जो second statement है that is incorrect. While US, Russia, China are in advanced stages of hypersonic missile program, India, France, Germany, Japan, Australia too are developing hypersonic weapons. इतनी सारी जो countries हैं वो hypersonic जो weapons हैं वो develop कर चुके हैं, लेकिन US, रशिया और जो चाइना है वो एडवांस स्टेजेस पे पहुंची है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की. सिक्स्थ क्वेश्चन, टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय. ओके, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन डी जापान. तो मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको बॉर्डर में जो इमिग्रेशन हो रही है उसके लिए यूएसए के द्वारा टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी लाई गई है और कोविड-19 के दौरान भी ये जो इमिग्रेशन थी उसको बैन करा गया, तो उसी को एक्सटेंड करा गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा. यूनाइटेड स्टेट अनाउंस दैट इट विल एक्सटेंड कोविड-19 पैंडेमिक इरा restriction known as Title 42 to expel migrants from Nicaragua, Cuba and Haiti caught crossing the US-Mexico borders back to Mexico. US और मेक्सिको बॉर्डर से जो इमिग्रेशन हो रही थी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी के द्वारा, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा. What is the theme of World AIDS Day 2022? Option A, leaving no one behind. Option B, equalize. Option C, empathize. Option C, empathize. Option D, inclusion of AIDS survivor. तो equalize जो theme है वो World AIDS Day 2022 की थी. Okay, B is the right answer. Which aims to focus on practical solution to reduce inequality and put an end to the life-threatening diseases. Okay. 8th question है, which word has been chosen as the word of year 2022 by the Oxford English Dictionary? Okay. Option A, I stand with. Option B, goblin mode. Option C, gas lightning. Option D, moon lightning. तो goblin mode जो word है उसको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चूज करा गया है. ओके, बी इज द राइट आंसर. और व्हाट इट मीन्स अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच एन unapologetically self-indulgent, lazy, slovenly, greedy or typically in a way that rejects social norms and expectation. Okay. 9th question, स्पोर्ट्स डे क्वेश्चन है. मनीषा रामदास हु वाज सीन इन द न्यूज प्लेज विद विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन डी शूटिंग. तो पैरा एथलीट है ये, बैडमिंटन के पैरा स्पोर्ट्स में ये बैडमिंटन खेलते हैं. ओके, शटलर है बी. इंडियन शटलर मनीषा रामदास हैज बीन नेम्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर. ओके, पैरा बैडमिंटन प्लेयर मिला है मनीषा रामदास को. 10th क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब? ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी G7, ऑप्शन सी आसियान, ऑप्शन डी सार्क. ओके, G7 के द्वारा ये इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च करा गया है. ओके, सी इज द राइट आंसर. और G7 के बारे में बताया गया है, ग्रुप ऑफ 7 इकोनॉमीज हैव क्रिएटेड एन ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब फॉर कंट्रीज टू कोऑपरेट इन द फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग. ओके, इसमें जर्मनी की जो चांसलर है ओलाफ स्क्लॉस
who hold the presidency of G7 until the end of the year. जर्मनी के द्वारा G7 की 2022 में प्रेसिडेंसी होल्ड करी गई. अनाउंस द डिसीजन, जर्मनी विल पास द प्रेसिडेंसी टू जापान. और 2023 में G7 की जो प्रेसिडेंसी है वो जापान के पास रहेगी. 11th क्वेश्चन, अंडर अटल इनोवेशन मिशन what is the maximum grant provided to establish Atal Incubation Center? Okay, 1 crore, option B 5 crore, option C 10 crore, option D 25 crore. तो इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करने के लिए 10 करोड़ प्रोवाइड करेगी अटल इनोवेशन मिशन के तहत गवर्नमेंट, और इसमें अटल इनक्यूबेशन सेंटर डेवलप करे जाएंगे. ओके, 10 करोड़ के अंडर. Under Atal Innovation Mission, grant in aid of 10 crore for a maximum period of 5 years is provided to establish Atal Incubation Center at the Bhabha Atomic Research Center. Recently signed agreement with MSME for incubation of newer technology into commercial product. जो मीडियम स्मॉल हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको भी प्रमोट करेगा अटल इनक्यूबेशन सेंटर. वहाँ पे एस्टेब्लिश किए जाएंगे अटल इनोवेशन मिशन के तहत. ओके, 12th क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज सेट अप अ कमीशन टू कंडक्ट ए सर्वे टू एंश्योर दैट ओबीसी आर प्रोवाइडेड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल टेस्ट. ओबीसी की जो रिजर्वेशन है वो ट्रिपल टेस्ट के बेस पे ऊपर किस स्टेट ने अभी ये कमीशन बैठाया और एक सर्वे करा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश के ने ये ओबीसी के ऊपर ट्रिपल टेस्ट रखा है. बी इज द राइट आंसर. उत्तर प्रदेश हैज सेट अप ए 5-member कमीशन which will conduct a survey to ensure that OBC are provided reservation on the basis of triple test as mandated by Supreme Court. 13th question, Morbi Bridge on the Machu River is located in which state? Okay, Morbi ब्रिज या जो मॉर्बी डिजास्टर है, हमने देखा कि HS मेंस में भी GS1 में ये क्वेश्चन मॉर्बी डिजास्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बना था. तो ये न्यूज़ में था. ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश. तो मॉर्बी ब्रिज जो या मच्छु रिवर अगर हम देखते हैं तो ये गुजराती नाम है. तो गुजरात में ये ब्रिज या डिजास्टर हुआ या ब्रिज जो कोलैप्स हुआ था. तो बी इज द राइट आंसर. 140 पीपल इंक्लूडिंग 40 वुमेन एंड 34 children were killed in the collapse of 135-year-old suspension bridge. Okay, GS1 में मेंस में क्वेश्चन था. इस तरह से हम अगर हमें पता होता या करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा होता तो इसमें हम ये लिख सकते थे कि 135-year-old सस्पेंशन ब्रिज किस रिवर पे? मच्छु रिवर, गुजराती में नाम है, इन द मॉर्बी. ओके, 754 feet bridge on the Machu River was built during the British rule in the 19th century. It collapsed 4 days after it was reopened after being closed for over 7 months for repair and re-innovation. ब्रिटिश टाइम का है और 7 मंथ इसकी रिपेयर हुई, लेकिन जिस तरह से फिर से रीओपन हुआ ये कोलैप्स हो गया. ओके, तो गुजरात स्टेट में ये इंसिडेंट हुई थी. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड with which country to explore the Venus and dark side of moon? Option A USA, option B जापान, option C ऑस्ट्रेलिया, option D रशिया. तो इंडिया की जो इसरो है जापान के साथ मिलके विनस और डार्क साइड ऑफ मून के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं. B is the right answer. ISRO has collaborated with Japan to explore the Venus and dark side of moon. ISRO was in talks with JAXA for sending lunar rover to explore the permanent shadow region of moon. Okay, तो JAXA के साथ collaborate करा है. Which state has launched the first exclusive handicraft policy? Option A राजस्थान, option B गुजरात, option C असम, option D हिमाचल
प्रदेश। हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी के लिए जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको प्रमोशन करने के लिए और एक तरह से गांधीयन आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए जो सेल्फ रिलायंट विलेज की बात उन्होंने करी थी, उसके लिए पॉलिसी लाई गई है राजस्थान के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। Rajasthan has launched its first handicraft policy to promote the skills and harness the potential of local craftsmen. The focus of the handicraft policy is to support the craftsmen, weavers as well as ensure the access to technological advancement. The policy also provides for handicraft parks, design centers, sales center and the creation of Directorate of Handicraft. मेंस में भी हम ये करंट अफेयर अगर हम मेंस के नोट्स बना रहे हैं तो इसमें लिख सकते हैं, अगर गांधीयन आइडियोलॉजी पे कोई बात आए उसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करा गया हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी के थ्रू, किसके द्वारा? राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने जीएस के आंसर में इसको डाल सकते हैं। ओके, 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट privately developed rocket? Option A आकाश, ऑप्शन बी विक्रम एस, ऑप्शन सी विक्रांत एस, ऑप्शन डी सूर्या। ओके, तो विक्रम एस जो है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। बी इज द राइट आंसर। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट नेम्ड विक्रम एस is said to be launched on the suborbital mission with 3 payloads. Hyderabad based space startup Skyroot Aerospace will become the first private space company in India to launch the rocket into space. अब इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? इसको हम मेंस के GS3 में यूज़ कर सकते हैं। अगर डिफेंस मैन्युफैक्चर में इंडिजिनाइजेशन की बात करें, इंडिया किस तरह से डिफेंस पॉलिसी को प्रमोट कर रही है, आत्मनिर्भर की बात कर रही है, इसी तरह हम एग्जांपल देख सकते हैं कि इंडिया के द्वारा प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट बनाया गया, दैट इज विक्रम एस। उसी में हम कोई अपना बात कह रहे हैं कि इंडिया को डिफेंस पॉलिसी या इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स करना चाहिए आत्मनिर्भर भारत के लिए, उसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि विक्रम एस इसी डायरेक्शन में हमारी गवर्नमेंट का स्टेप है। 17 क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन इन COP27 समिट? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूके। तो इंडिया के द्वारा इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन लॉन्च करा गया COP27 समिट में। India's Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the United Nations Development Program launched the In Our Lifetime campaign at a side event of COP27 at Sharm el Sheikh, Egypt. Okay. 18th question, which country scientist has been elected as the vice president of the International Astronautical Federation? Okay, IAF में किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। हमने प्रीवियसली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए IAF में। अब इनका नाम क्या है? नाम है उनका AK अनिल कुमार। सीनियर साइंटिस्ट इन इसरो इज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन ड्यूरिंग इस एनुअल कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। 19th क्वेश्चन, Indian Navy signed an agreement on wide shipping information exchange with which country? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड के साथ साइन करी गई है शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ओके, डी इज द राइट आंसर। इंडियन नेवी साइंड एन एग्रीमेंट ऑन वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद न्यूजीलैंड नेवी। ओके, 20th क्वेश्चन है, इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फ्लैगशिप कल्चर प्रोग्राम सारंग? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन डी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इंडियन एम्बेसी जो सारंग है वो हमारी साउथ कोरिया, सारंग कल्चरल प्रोग्राम है वो साउथ कोरिया के साथ लॉन्च करा है। सी इज द राइट आंसर। इट एम्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग and friendship among the people of two countries and improve the bilateral relation. Okay, thank you for watching the video. Have a nice day.